morning to students of class 8. Welcome to all of you. Today we will discuss about the chapter comparing quantity. Today we will discuss about some special tips, topics like profit and loss, and some important facts and formula regarding profit and loss. Okay, and so please watch carefully, and then you will also solve any question from related this topic. Okay, here is the some important formula and facts. Profit and loss is the topic related to comparing quantity. Okay, and some important facts and formula is given. First of all, cost price. Okay, in short we will say CP. CP is the cost price. The definition is the amount for which an article is bought is called its cost price. Okay, this is the amount on which anything can be bought to is called its cost price. Now selling price, this is SP in short. The amount for which an article or anything is sold is called its selling price. Now profit or gain. Okay, profit or gain. When selling price is greater than cost price, this is the sign of greater than. Okay, when selling price is greater than cost price, then there is a gain. Okay, and now the formula of gain is equal to selling price minus cost price. Okay, in case of profit or gain, selling price is greater than cost price. Okay, and so the formula will be gain equal to selling price minus cost price, SP minus CP. Now loss, when selling price is less than cost price, that is selling price, that is SP is less than CP, then there is a loss. And so in case of loss, formula of loss will be CP minus SP, that is cost price minus selling price. And so now some important formula related to gain and loss, profit and loss. Okay, and here is the first formula. In case of gain, selling price minus cost price, it is already calculated here. And second, loss is equal to CP minus SP, cost price minus selling price. And now third one is gain percent. Okay, gain percent, that means gain by CP into 100 into that is the percentage. Okay, once again, gain percent equal to gain by CP into 100%. This is the formula in case of gain percent. Okay, and now fourth one is loss percent. In case of loss percent, loss by cost price, loss by CP into 100%. Okay, this is the formula. And now to find selling price when cost price and gain percent or loss percent are given, then we have to what it will be the formula of selling price. Okay, then once again, to find selling price when CP and gain percent or loss percent are given, then the formula will be here, selling price equal to 100 plus gain percent by 100 into CP. Okay, and now second formula, selling price, that is SP equal to 100 minus loss. In case of loss there will be minus sign, and in case of gain there will be plus sign. Okay, into CP. Okay, by 100. And now to find CP, that is cost price, when selling price and gain percent or loss percent are given. Okay, and so selling price, that is CP equal to, that is CP, that is cost price, not selling price. CP cost price equal to 100 by 100 plus gain percent into SP. Okay, that is selling price. And now in case of CP, 100 by 100 minus loss percent into SP. This is the formula related to profit and loss, and this formula will be very helpful in solving chapter 8 comparing quantity to all of you. Okay, once again एक बार फिर मैं बता दूं आप सबको, ध्यान से देखेंगे. अभी ये टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटी का प्रॉफिट और लॉस, जिसे हम लाभ हानि कहते हैं हम लोग. ठीक है, और इसी से रिलेटेड, इसी संबंधित कुछ फार्मूला है, कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में जानकारी रखें आप, तो इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फार्मूला से सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ठीक है, देखें हम लोग एक बार फिर से, एक बार ध्यान से देखिए इसको. ये कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस है ना, ये
इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। ओके, कॉस्ट मतलब क्या, डेफिनेशन देख लीजिए इसका क्या परिभाषा है। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बाउट, कोई सामान जब हम खरीदते हैं उसकी जो कीमत होती है वह उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो सामान हम खरीदते हैं उसकी जो कीमत होती है, आर्टिकल में सामान को कहते हैं, ठीक है, थिंग्स को कहते हैं, और उसकी जो कीमत होती है वह कहलाता है कॉस्ट प्राइस। दूसरा सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब बेचना होता है, तो जान लीजिए इसको विक्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, कोई अमाउंट, वह राशि, वह पैसे रुपया जिसमें किसी चीज़ को बेचते हैं, किसी थिंग्स को बेचते हैं, किसी आर्टिकल को आप बेच देते हैं, इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कहलाया वो। ठीक है, कोई सामान आप खरीदते हैं, मान लीजिए आप 10 रुपये की पेंसिल को बेचते हैं 12 रुपये में या 8 रुपये में, ये सेलिंग प्राइस कहलाया आपके लिए। ठीक है, तो ये अब ये देखिए तीसरा है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट मतलब मुनाफा, फायदा, ये दोनों चीज़ें, या लाभ, एक ही चीज़ है सभी। तो आप देखिए व्हेन सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी हम कहेंगे मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, या गेन हो रहा है, ठीक है, या लाभ हो रहा है। देन देर इज ए गेन, तब हम कहेंगे ये लाभ हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध मुनाफा, जिसे हम गेन कहते हैं। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि इस गेन के केस में लाभ तभी होगा आपको जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, इसलिए गेन इक्वल टू, लाभ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। गेन मतलब मुनाफा इक्वल टू कह सकते हैं, लाभ इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस घटाव भी देते हैं इसको, और क्रय मूल्य। ठीक है, अब लॉस देखिए, लॉस के हानि कहते हैं, इसमें हानि होता है। कोई सामान आप लेते हैं 10 रुपये में, उसे 8 रुपये में बेचना पड़ता है, तो ये आपको लॉस हो गया 2 रुपये का। इसी तरह से कहते हैं व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो देयर इज ए लॉस, तो इसमें आपको लॉस हो रहा है। अभी जैसे हमने बताया ना, 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच दिया आप, 2 रुपये का लॉस हो गया आपको, तो इसका फॉर्मूला होगा लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे ध्यान देंगे इस पर, इससे रिलेटेड। तो देखिए गेन के केस में गेन इक्वल टू SP माइनस CP, गेन जब मुनाफा होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा लॉस होगा तो CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस जब होगा तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, और जब गेन होगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। कॉस्ट प्राइस जो है आपका ये ज़्यादा होगा लॉस के केस में, और गेन के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, इसलिए ये लॉस के केस में लिखते हैं CP माइनस SP। और ये गेन परसेंट, प्रतिशत 100 में निकालते हैं, जब गेन परसेंट, मुनाफा जब 100%, 100 में 100 में क्या आता है उसको बोलते हैं गेन परसेंट, तो गेन बाई CP इंटू 100%। और ये जब ये लॉस परसेंट होगा तो लॉस बाई CP इंटू 100%। फिर है टू फाइंड सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस निकालना होता है व्हेन CP एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला, जब आपको दिया गया गेन परसेंट दिया गया हो, CP कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, लॉस परसेंट दिया गया हो, तो वैसे हालात में, वैसे परिदृश्य में, वैसे स्थिति में आप कैसे निकालेंगे SP के बारे में। तो देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू, इन केस ऑफ गेन परसेंट होगा तब 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। ठीक है, और जब लॉस होगा, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस। अब ये आप देखिए आगे टू फाइंड CP, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये पहले सेलिंग प्राइस था, अब CP कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। मतलब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है जब SP सेलिंग प्राइस दिया गया हो, गेन परसेंट दिया गया हो और लॉस परसेंट दिया गया हो, तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए 2 फार्मूला फिर दिया गया है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP सेलिंग प्राइस। दूसरा CP कॉस्ट परसेंट, CP का फॉर्मूला फिर है आपका CP कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP सेलिंग प्राइस। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और मैं बता दूं आपको कि अगले हफ्ते में ये थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन टेस्ट एक होगा आपका, और टेस्ट में मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जो आपका है रेशनल नंबर, और चैप्टर 7 होगा आपका परहैप्स 7 या 6 देखिएगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 2 चैप्टर से टेस्ट आएगा आपका। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा और सॉल्व करके आपको बनाना होगा।
और उसकी सूचना फिर एक बार मैं दे दूंगा। इसका ध्यान रखेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप यूट्यूब में, व्हाट्सअप पर नहीं है कमेंट करना है आपको, यूट्यूब में कमेंट कीजिए। आप यूट्यूब में अच्छा लगा तो आप लिख सकते हैं वेरी नाइस वीडियो, इस तरह से आप कमेंट दे सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कीजिए आप, तो आपका एक तरह से अटेंडेंस भी बन जाएगा। इस तरह से ध्यान देखिए आप सारे लोगों को। ये फिर से एक बार आपको गुड मॉर्निंग और ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके।